Rahim. Assalamu alaikum and welcome dear students. How are you? Hope so you will be fine. The Smart School Peshawar Gulbahar campus and Canal Town campus. Dear students, as you know that you are having your second monthly assessment in September and you are not coming to school and not attending the regular classes. That's why we are providing guidance to you through videos. So watch these videos carefully. And you can also take help from these videos because all these videos are based on attemptation and preparation of your papers. Introduction, lecture number 5, class 4, subject computer studies, subject teacher Ma'am Iram Salim. Online with smart computing, this is your computer book, so take out your books. Unit 3, input and output devices, page number 20. Okay students, this is page number 20 of your computer's book. But before starting our new topic, let us discuss the previous topic also. We have started unit number 3 and we have done reading of page number 18 and 19 in our previous lecture. We have discussed some input devices like keyboard, mouse, joystick, trackball, touch screen and also touchpad. Today we will discuss the rest of the input devices. So look at your books carefully. Mention date, classwork and day on your books. Microphone. A microphone is used to input and record voice into the computer. Students, you can see in figure 3.7, this is a microphone. Microphone जो है आप लोग input और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अपनी वॉइस को या कोई भी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए और कंप्यूटर को इनपुट करने के लिए अपनी वॉइस को या साउंड को आप लोग उसके लिए माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. Scanner. Scanner is an input device which reads and scans the text and pictures given on a paper into the computer understandable text and pictures. These converted text and pictures can be stored in your computer for later use. You can also email the scanned text to anyone. It saves your time and makes your task easy. There are two types of scanners, flatbed scanner and handheld scanner. ओके स्टूडेंट्स, स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर्स को जो कि पेपर पे होते हैं, ठीक है, जो हार्ड फॉर्म में होते हैं, जो पेपर पे होते हैं, कोई भी पिक्चर या किसी भी टेक्स्ट को रीड और स्कैन कर सकते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट एंड पिक्चर्स में. ठीक है, और उनको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट और पिक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं. रीड करके स्कैन करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उनको कंप्यूटर में स्टोर भी कर देते हैं बाद में यूज़ करने के लिए. इसके अलावा आप लोग स्कैन्ड टेक्स्ट या पिक्चर्स को ईमेल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ये आपके टाइम को सेव करता है, बचाता है और आप लोगों के काम को ईजी बनाता है. बजाय इसके कि आप लोग खुद से टाइप करें, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है. अगर आप लोग आप टेक्स्ट स्कैन करना चाहते हैं या मेल करना चाहते हैं तो आप लोग उसको उस टेक्स्ट को स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करें और वहाँ से आप लोग उसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल. हमारे पास टू टाइप्स के स्कैनर्स होते हैं. एक फ्लैट बेड स्कैनर्स होते हैं जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है फिगर 3.8 में, और एक हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं जिनको आप लोग हैंड में पकड़ के यूज़ कर सकते हैं. मतलब we have two types of scanners. The next one is barcode reader. A barcode reader is used to read barcodes printed on items in a shop meant for sale. A barcode is a sequence of black lines on a white background. It has a number written on it. A barcode reader is used in libraries, supermarkets, etc. to distinguish the items being scanned and to make appropriate entries in the stock records, as well as to raise a bill if required. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग फिगर 3.9 में देख सकते हैं. दिस इज़ द सिंबल ऑफ बारकोड एंड दिस इज़ द डिवाइस बारकोड रीडर इन फिगर 3.9 बी. बारकोड रीडर जो है वो बारकोड्स को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है. जो किसी भी शॉप में जो आइटम्स पड़ी होती हैं, जो चीज़ें पड़ी होती हैं, उनके ऊपर जो एक बारकोड्स लगे होते हैं, जो हिडन कोड्स होते हैं बेसिकली, यानी आप लोगों को तो वो जस्ट ब्लैक लाइंस नज़र आ रही होती हैं वाइट बैकग्राउंड पे, लेकिन एक्चुअली उसमें एक
हिडन कोड होता है जो सिर्फ बारकोड रीडर ही रीड कर सकता है, आप उसको नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, ठीक है। और ये कोड्स जो होते हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होते हैं ये कोड्स। और इसके अलावा इंट्रीज़ करने के लिए भी इन कोड्स को यूज़ किया जाता है, स्टॉक इंट्रीज़ करने के लिए, और बिल बनाने के लिए भी, बिल्स बनाने के लिए भी इन कोड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बारकोड क्या करता है, बारकोड रीडर क्या करता है, वो बारकोड्स को रीड करता है। द नेक्स्ट वन इज़ लाइट पेन. A light pen is a pen-shaped pointing device. It is connected to the monitor. Light pens are used to draw pictures on the screen. You can also select objects on the screen pointing at them with pen. It is mostly used by engineers and designers. Light pen जो है वो एक pen-shaped pointing device होता है, as you can see in figure 3.10. ये जो है मॉनिटर के साथ कनेक्ट होता है। लाइट पेन पिक्चर्स, स्क्रीन पे पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए भी लाइट पेन यूज़ होता है। आप उनको पेन के थ्रू पॉइंट कर सकते हैं। और ये पेन जो है लाइट पेन, ये ज़्यादातर इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेस. We have discussed the input devices. Now we are going to discuss the processing devices. The processing unit of a computer is known as the central processing unit, CPU. The CPU does calculations and carries out many other functions. It is known as the brain of the computer. CPU जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है किसी भी कंप्यूटर का, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU जो है वो कैलकुलेशंस करता है और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU के 3 पार्ट्स हैं। ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. इट डज ऑल द कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एट्सेट्रा. ALU जो पार्ट है वो सब कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन एंड कैलकुलेशंस. CU, control unit. It controls all the activities of the computer. It tells other parts of the computer what they should do. कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर की जो डिवाइसेस है या अदर पार्ट्स है उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और वो उन डिवाइसेस को, उन पार्ट्स को बताता है कि उन्होंने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। MU, मेमोरी यूनिट. इट स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परली. मेमोरी यूनिट जो है वो डेटा को स्टोर करता है टेम्परली, ठीक है। दिस इज़ द मेमोरी यूनिट, और ये डेटा स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन रीडिंग टिल पेज नंबर 21. द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग लेक्चर. नाउ कमिंग टू द क्लास वर्क, दिस इज एक्सरसाइज B. ओपन पेज नंबर 24 of your book. Mention date, classwork and day. Exercise B, fill in the blanks. You have given some options. आप लोगों ने इन ऑप्शंस की हेल्प से ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1, डैश इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. कौन सी डिवाइस यूज़ होती है गेम्स प्ले करने के लिए? जॉयस्टिक. नंबर 2, डैश इज़ कॉमनली यूज्ड इन लैपटॉप्स. कौन सी चीज़ लैपटॉप्स में यूज़ होती है? टच पैड. नंबर 3, डैश इज़ यूज टू रीड एंड स्कैन द टेक्स्ट. टेक्स्ट को स्कैन और रीड कौन करता है? स्कैनर. नंबर 4, डैश इज़ अ पेन शेप्ड पॉइंटिंग डिवाइस. पेन शेप्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? लाइट पेन. नंबर 5, डैश इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? CPU. वेरी गुड, आप लोगों ने ये काम पेंसिल्स के साथ करना है और बहुत नीट राइटिंग में करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए सेम एक्सरसाइज प्रिपेयर की है। आपके चैप्टर से ही मैंने कुछ ब्लैंक्स उठाई हैं और मैंने उसको आप लोगों के लिए टाइप किया है। आप लोगों ने इन ब्लैंक्स को A4 शीट्स पे लिखना है, प्रॉपर मार्जिन लाइंस लगानी है, डेट मेंशन करनी है, होमवर्क और डे, और आप लोगों ने इस काम को करने के बाद उसकी पिक्चर लेकर स्कूल के व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, और आप लोगों ने इन दोनों एक्सरसाइजेस को याद करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स. कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. कंप्यूटर कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं दीज आर ब्लैंक्स. नंबर 2, अ लाइट पेन इज़ अ पेन शेप्ड पॉइंटिंग डिवाइस. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ब्लैंक है वो पेन शेप्ड है, ठीक है। आप लोगों ने पेन शेप्ड को
ब्लैंक कर लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। CPU इज़ नोन एज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है? CPU है, ठीक है। तो आप लोगों ने ब्लैंक में प्रोसेसिंग यूनिट लिखना है। डैश इज स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट स्टोर्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डेटा। डैश जो है वो एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है जो कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करता है, दैट इज़ पेन ड्राइव। नंबर 5, अ सीक्वेंस ऑफ ब्लैक लाइन्स ऑन अ वाइट बैकग्राउंड इज कॉल्ड डैश। जो वाइट बैकग्राउंड पे जो ब्लैक लाइन्स होती हैं उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड बार कोड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क एंड यू शुड डू योर क्लास वर्क एंड होमवर्क एज वेल. Students, you should do your classwork and homework tidily and properly. Your writing should be neat, avoid mistakes, and also learn these both exercises that I have done in today's video. Keep learning. Thank you. Allah Hafiz.